Assalamu alaikum. Hey everyone. So myself Hadi. So as it's been a long time that we haven't recorded any video, we haven't come on YouTube and discuss about anything about programming. So in our last video of Web Development Bootcamp, I have promised that we will be continuing with our journey, and I'll back with the Rust content, the Rust programming language, and it's right now it's on my screen, and we will be going to start the Rust development journey from now on. So we will cover from beginner level till advanced level. So uh, in the beginning, we will start with the basics of the Rust programming language, what it is for, how we can what should be the roadmap for learning Rust. So, and in advance, we will cover the Solana development. We will explore the distributed systems engineering, the Web3, and so on and so forth. So, we will be following the official Rust cookbook, or you can say the book to learn the Rust programming language. So let's deep dive into the Rust. So uh, let's start with the introduction. So why Rust? What it is for? Who Rust is for? So Rust बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए है जो कि फोकस करते हैं स्केलेबिलिटी पे, जिन्हें मेमोरी एफिशिएंट बिल्कुल जो फोकस्ड होते हैं, कि जिनको मेमोरी लेवल पे या बिल्कुल लो लेवल प्रोग्रामिंग करनी होती है, जो कि सोचते हैं कि लो लेवल कंट्रोल्स हो, जिनके पास अगर मेमोरी का कोई कंट्रोल हो, स्पीड ऑप्टिमाइज्ड हो और सारी चीज़ें। सो उनके लिए रस्ट है, और रस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कि हम उससे काफ़ी सारी फील्ड्स में जा सकते हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हो, हमारे आईओटी या एम्बेडेड सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें। सो this is Rust, and let's start with the installation of the Rust programming or Rust language. So for this, we have to install the IDE first. I guess we have installed already. You already have installed it in our previous web development bootcamp, the VS Code. Most of the times, developers use VS Code, or the other ones uses IntelliJ. So we will be following, or we will be using VS Code for now. सो VS कोड इंस्टॉल करने का तरीका यही है कि VS कोड इंस्टॉल डायरेक्टली यहाँ से लिख लें। अगर आप विंडोज़ पर हैं तो विंडोज़ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आके आप यहाँ पे आके डायरेक्टली स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ या सो राइट हियर, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आपको दिखाऊँ VS कोड, VS कोड एंड VS कोड यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे आ जाएं, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, एंड you can download it on your for your respective machines, Mac, Linux, or Windows. And then let's go on to installing Rust. So in for installing Rust, we have to follow this command. So we have to copy this command and paste it in our terminal. So I have already installed it. So after you running this command, you will see some of the options, and you can आप इंस्टॉल कर लें रस्ट को, और उसके बाद फिर कैसे वेरीफाई करेंगे कि वेदर द रस्ट प्रोग्रामिंग इज द रस्ट लैंग्वेज इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर पीसी. So you can direct check by typing cargo, and you will see a lot of options or commands or help response in your terminal. So let's say आपके पास cargo tool chain आ गई, और ये सारे काफी सारे options आ गए. So you can follow this. एंड आफ्टर दैट, अगर मैं इंस्टॉलेशन रस्ट की बुक पे आ जाऊँ कि किस तरह इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे भी सेम कमांड है कि कर्ल प्रोटो, और आपको ये वाली कमांड जस्ट कॉपी करनी है, अपने टर्मिनल में पेस्ट करनी है, एंड यू हैव इट इंस्टॉल्ड इन योर पीसी. So now, and as well as you can also look for the Rust version. If you have already installed the Rust, you can update the Rust version too, or you can verify it by Rust C minus minus version. And you can see the Rust version is one Rust compiler. It's you have if you have worked on C++ or C, so there is a compiler GCC.
or we have Rust C, Rust compiler. For TypeScript, we have different compilers. And let's move on to the next lecture or the next task. So yeah, so अगर हम पहले तो हम आ जाते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी में हमें काम करना है। हम कोई भी डायरेक्टरी में जिसमें भी आपकी कोई रिक्वायर्ड डायरेक्टरी और या आपकी प्रेफर्ड डायरेक्टरी, आप उसमें चले जाए। जैसे मैं सी डी डेवलपमेंट में आ गया। मैं अब यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप रस का प्रोजेक्ट कैसे इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हमने रिएक्ट में करते थे कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और क्रिएट नेक्स्ट ऐप, इस तरह करके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कार्गो, आप यहाँ पे लिखेंगे कार्गो इनिट। कार्गो इनिट क्या करेगा, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर देगा आपके पीसी में या आपकी डायरेक्टरी में। सो लेट्स से मैं कार्गो इनिट करता हूँ। ये इसने क्या किया, बाइनरी एप्लीकेशन पैकेज, यहाँ पर सी मोर कार्गो डॉट टॉमल कीज। ठीक है, अगर मैं ls करूँगा and oh my bad, so I haven't moved into the, let's say, learning Rust. Let's do it again. I'm yeah, learning Rust and cd learning Rust, and then we can do again cargo init. So we have it installed. So creating binary and cmore cargo.toml.keys and so on so forth. Now I will open it up in our VS Code. You can directly open it with VS Code, or you can directly type in code hyphen space dot, and it will open the VS Code in your computer or PC. So you have to first install three extensions for Rust. So it's not necessary, but it will help you a lot in your Rust development. So we have Toml. The extension name is Toml Rust Analyzer and code LLDB. So let's say if I go on the extensions tab, yeah, if you come on extensions and type in, let's say, Rust Analyzer. So जैसे कि आप आई गेस मेरा मेरा पीसी पे अभी ओबीएस और रिकॉर्डिंग सेटअप चल रहा है, इस वजह से काफ़ी स्लो हो गया है। सो जैसे ही आप रस्ट एनालाइजर सर्च करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट एक्सटेंशन है रस्ट एनालाइजर की, ये आप इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा आप अगर आ जाएं कोड LLDB, it's allow you to directly run a Rust program in from your IDE. You don't have to go in the terminal and write it down, cargo run and so on and so forth. So you can just click on the button run and it will directly run the Rust program into your PC. So this is the code LLDB. And then you can also go for Toml. Toml is kind of cargo.toml. We will explore the file structure of the Rust as so beforehand. We can install the even better Toml, or you can install any of the Toml extension. This is optional. So starting with the cargo.toml, cargo.toml तकरीबन सेम ही है, as same as we have explored in React or Next.js, the package JSON. So we have package JSON in the Rust and Next.js. However, we have cargo.toml in Rust, so we can define all the dependencies we are using into our projects. So let's say अगर मैं कोई भी डिपेंडेंसी, जिस तरह हम रिएक्ट में करते थे जिस जिस तरह रिएक्ट और इसके फिर हम वर्जन टाइप कर देते थे, लेट्स से 1.0.0 इस तरह करके। तो यहाँ पे आप कुछ भी वर्जन या कोई भी, लेट्स से आप, इट्स जस्ट लाइक कि आपने कोई भी वर्जन डिफाइन कर दिया कि भाई मैं वन, इस तरह 1.0, 0.0 या 1.9, कुछ भी आप इसके काफ़ी सारे आपके पास तरीके आ जाते हैं। इसके बाद कार्गो डॉट लॉग, सेम पैकेज लॉग जेसन या pnpm लॉग YAML की तरह। इसके बाद सोर्स में आ जाते हैं। सोर्स असल में मेन डायरेक्टरी है जिसमें हम मेन काम कर रहे होंगे हमारा। अच्छा, एक और चीज़ हम रस में ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे करें कि एक और कमांड कर कार्गो init -lib. It will initialize your project, but
माइनस माइनस लिब का मतलब है कि लाइब्रेरी फाइल्स इंस्टॉल होंगी, मींस कि आप लाइब्रेरी बिल्ड कर रहे हैं या आपके लिए अलग से एक फाइल आ जाएगी जिसमें यहाँ पे एक और फोल्डर होगा लिब, और उसके अंदर फिर रस की फाइल होगी. So just we this is the boilerplate code function main and println hello world. We will explore कि किस तरह functions बनते हैं, variables बनते हैं और बाकी सारी चीजें. So let me run cargo run and we can see hello world in our terminal, or we can say we did the hello world in Rust. So let's continue with the uh, Rust book or the documentation. Let's go on the hello cargo. Um, it's taking a bit much time than usual. All right. So check whether cargo is installation in the installation section, because we have already covered that how we can install the Rust through Rustup or Rust, yeah, with this command. So, and I have already told you how we can check whether the cargo is installed or not. So what the cargo will do, it will create a new project in your directory. Let's say cargo new, and you can create a project into your PC. So let's go on the variables and data types and so on and so forth. So let's start with the basic ones. Let me uh, yeah, put that. All right. So let's start with the. अच्छा, ये प्रिंट एलन की कमांड ये है कि प्रिंट कर देगा आपके टर्मिनल में. अगर अब हम आ जाते हैं कि वेरिएबल्स और ये इस तरह की चीज़ें किस तरह बनती हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, क्योंकि रस्ट एक टाइप सेफ लैंग्वेज है जिसमें हमें टाइप, जिस तरह हमने वेब डेवलपमेंट बूटकैम्प में पढ़ी थी टाइप स्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट इज टाइप स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिसमें हम टाइप्स को डिफाइन करते हैं और हम बताते हैं कि भाई आउटपुट में ये टाइप आएगी, इनपुट में ये टाइप है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. और हम हर वेरिएबल की टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं. जिस तरह यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं कि मैं लेट लिखता हूँ, लेट्स नेम इज इक्वल्स टू, या तो मैं यूं कर दूं नेम स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लेट्स से हादी. और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन ना भी करूँ, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये कौन सी टाइप है. स्टैटिक हम बाकी बाद में चीज़ें पढ़ेंगे, एम्परसेंड साइन क्यों यूज़ हुआ, ओनरशिप और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स. और स्टैटिक के स्टैटिक रहेगा कि पूरी फाइल में सेम ही रहेगा स्टैटिक, और स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग इसकी डेटा टाइप है. सो दिस इज व्हाट. अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अगर इसको यहाँ पे स्ट्रिंग ही करता हूँ, लेट्स से str, sorry my bad, str. एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I32, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 321. I32 यानी इंटीजर, जिसका साइंड इंटीजर है, जो इसकी डेटा टाइप क्या है यानी कितने बिट्स का है, ये 32 बिट है. इसमें आपके पास काफी सारे आ जाते हैं 64 बिट्स, और फिर सुन इसमें अब इंटीजर यानी साइंड इंटीजर का क्या मतलब है कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको सीरीज बता दूं, इसको अलग करते हैं लेट्स से I64, जिसमें यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन जीरो, और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, यानी नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा. नेगेट नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते. और अगर मैं यहाँ पे डिफाइन भी करना चाहूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ और सेव करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एरर शो हो जाएगा कि भाई आपका ओ सॉरी अनसाइंड इंटीजर. अब मुझे यहाँ पे एरर शो हो जाएगा कि आपके पास साइंड साइंड और अनसाइंड का मैं बता देता हूँ डिफरेंस, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम, थोड़ा सेव हो जाओ. ऑलराइट. सो यहाँ पे हम आ जाते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं कि साइन इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर्स क्या होते हैं. साइन अनसाइंड यानी U64, इसका मतलब क्या है, माइनस में आप साइन डिफाइन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपकी जितनी भी 64 की 64 बिट्स हैं वो अब
पूरी कवर करेंगी। और अगर मैं यहाँ पे लेट नंबर 1 और यहाँ पे लिखता हूँ I34 और यहाँ पे मैं -321 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये वर्क कर जाएगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा। हमें सेव करना है और हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, ये इसका मतलब है यहाँ पे एरर भी आ रहा है। कैन नॉट अप्लाई यूनरी ऑपरेटर माइनस टू टाइप U64 अनसाइंड वैल्यूज कैन बी नेगेटेड। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर I64 विद I32 मैंने डिफाइन किया है, यानी इसका मतलब क्या है, इंटीजर है यानी साइंड इंटीजर है, जिसका मतलब क्या है कि हमारी जो फर्स्ट बिट है वो या तो हमारी पॉजिटिव यानी प्लस का साइन होगा या तो माइनस का साइन होगा। इसके बाद फिर बाकी की 31 बिट्स हमारी कवर हो जाएंगी नंबर्स में यानी इंटीजर में। ठीक है। तो इस तरह की ये पूरी सीक्वेंस होती है। अगर मैं आपको पेंट वगैरह पे बता के दिखा सकता था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टाइप बता दी कि भाई एक्सपेक्टेड ड्यू टू इट्स टाइप कन्वर्जन डॉट टू स्ट्रिंग, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ये एम्परसेंड स्ट्रिंग क्या होता है और ये सारी चीज़ें। तो अभी हम फॉर द टाइमिंग डायरेक्टली ओनरशिप वाले कॉन्सेप्ट को स्किप करते हुए बस अभी मैं कंपाइलर एरर को रिजॉल्व करने के लिए बस मैं अभी ये वाला मेथड यूज़ करके मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया। ठीक है। इसके बाद वो बेसिक एडवांस कॉन्सेप्ट है उसको हम बाद में देखते हैं। इसके बाद वेरिएबल्स को हम देख लेते हैं। ओके, इसके बाद है म्यूटेबल डेटा टाइप्स में आपके पास काफ़ी सारी डेटा टाइप्स हैं। लेट्स से डेटा टाइप्स, लेट्स से आपके पास हैं फ्लोट यानी F32 F64 व्हाटसोएवर, स्ट्रिंग आ गए आपके पास। आपके पास काफ़ी सारी डेटा टाइप्स हैं जो कि आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इंटीजर I32 U32 unsigned, signed and so on so forth. You have booleans कि अगर आपको कोई boolean डिफाइन करना है, लेट्स से is working false। ठीक है। मैं यहाँ पे false डिफाइन कर दिया, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लिया बूल है। अगर मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप देना भी चाहूँ तो बेहतर है। अच्छा, हमने टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि हम जो वेरिएबल्स की कन्वेंशन इन नेम कन्वेंशन वो हम रखते हैं कैमल के स्लेट से इज वर्किंग एंड इज इक्वल्स टू फॉल्स, इस तरह करते थे। लेकिन रस्ट में क्या होता है, ये हम स्नेक केस फॉलो करते हैं कि यानी हम कैपिटल की बजाय हम यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर लगा देते हैं और बाकी सारे नेम्स कीवर्ड्स हमारे स्मॉल लेटर्स में रहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास चॉइस है। हाउएवर इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड वे टू define the variables or function names in Rust. So let's move on to the next topic, mute, mutability, and so on and so forth. So right now, let's say if I want to change the change anything into this, let's say let मैं यहाँ पे कर देता हूँ is working is equals to true। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस वर्किंग को टू कर दिया। लेट है ना, लेट में क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि मैं रीडिफाइन कर सकता हूँ यानी मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। हाउएवर यहाँ पे रस में मुझे ये एरर दे रहा है कि कैन नॉट म्यूटेट इम्यूटेबल वेरिएबल इज वर्किंग। इसका मतलब क्या है कि रस में आपके पास दो तरीके होते हैं, म्यूटेबल वेरिएबल्स और इम्यूटेबल वेरिएबल्स। बाय डिफॉल्ट आपके वेरिएबल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं यानी वो चेंज नहीं हो सकते। आप उनकी वैल्यू एक बार डिफाइन कर दी, दैट्स इट, यू कैन नॉट म्यूटेट योर वेरिएबल्स वैल्यू ऑन सोच। हाउएवर इफ यू ऐड लेट म्यूट इज वर्किंग नाउ, जैसे ही मैंने टाइप किया म्यूट, मैं अगर जूम कर दूं थोड़ा सा कि अगर मैं जैसे ही टाइप किया म्यूट, अब क्या हो गया, इसने मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा। नाउ वी कैन म्यूटेट और चेंज द वैल्यू ऑफ a variable whenever we want। However, there is another thing we can, if I remove this one and let me do that thing, let is working एंड लेट्स से मैं कोई चीज डिफाइन नहीं करता, अभी कोई वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की है, एंड देन इन नेक्स्ट लाइन आई एम डिफाइनिंग दैट इज वर्किंग इज इक्वल्स टू ट्रू।
This can possible, however, now if I write is working is equals to false, अब मैं रीडिफाइन कर रहा हूं इसकी वैल्यू को जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, ये पॉसिबल नहीं है, एंड वी कैन रिजॉल्व इट बाय डिफाइनिंग लेट म्यूट नाउ, yeah, now you can see the errors are removed. सो ये हो गए म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि कांस्टेंट यानी एक बार डिफाइन हो गए तो उसको मैं कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट मींस के पूरी फाइल में सेम या पूरे प्रोग्राम में आपके ऐसे वेरिएबल्स जो कि बिल्कुल ही चेंज नहीं होंगे, एक ही बार डिफाइन भी हो जाएंगे, जो कि रीडिफाइन नहीं होंगे, कि आप अन इनिशियलाइज इसको छोड़ भी नहीं सकते। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉन्स्ट लेट्स से रैंडम रैंडम कॉन्स्ट, ये जस्ट मैंने नाम लिख दिया, मैं यहाँ पे कह देता हूँ बूल, इसकी टाइप बूल होगी, और मैं यहाँ पे आता हूँ रैंडम कॉन्स्ट, और मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि फ्री कांस्टेंट आइटम विदाउट बॉडी, यानी प्रोवाइड अ डेफिनेशन फॉर द कांस्टेंट। जिस तरह मैंने बताया कि हमें कॉन्स्ट में डेफिनेशन यानी उसकी वैल्यू डिफाइन करना जरूरी है। लेट की तरह इसमें यह नहीं होगा कि हमने एक बार लेट से वेरिएबल हमने डेटा टाइप दे दी, वेरिएबल का नेम असाइन कर दिया, और हमने वैल्यू अनइनिशियलाइज छोड़ दी, और हमने नेक्स्ट स्टेप में आके अगर हम लेट की वैल्यू को इनिशियलाइज करें तो इट्स पॉसिबल वी कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल for the let keyword later in later lines or later in the program. However, we cannot do this with const. So we have to define the value whenever we are initializing the variable. All right. So let's say if I do true right here. So अब यहाँ पे मेरा ये एरर रिमूव हो गया कि आपका, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं शैडोइंग वाला कॉन्सेप्ट। शैडोइंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने ब्लॉक स्कोप और बाकी ग्लोबल स्कोप वाले चीज़ें हैं जो कि हमें रिव्यू करनी है। तो ये है कि ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर है आने वाले, उसमें हम कवर करेंगे कि ये शैडोइंग किस तरह चलते हैं, ब्लॉक स्कोप क्या होते हैं। जस्ट इसका टच ये दे देता हूँ कि यहाँ पे लेट अगर हमने x+1 रखा है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, 5+1 6, 6 हो गई x की वैल्यू। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो रस प्रोग्राम है ये बिल्कुल आइसोलेटेड है बाकी तमाम मेन फंक्शन से। लेट से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से लेट रैंडम फॉन्ट्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर ओ सॉरी मैंने बोल लिया की जगह फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि सेव हो जाओ। ओके, यहाँ पर क्यों यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, मैं हाउएवर मैं वैल्यू को रीडिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे लेट से कॉन्स्ट रैंडम कॉन्स्ट, ऊपर मैंने कॉन्स्ट के साथ दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे अलाउ कर रहा है लेट के साथ। क्यों भाई, ये मुझे यहाँ पे क्यों अलाउ कर रहा है? अगर मैं यहाँ पे सेम चीज यही लाइन यहाँ पे कॉपी करूँ, रैंडम कॉन्स्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स, अब मैं यहाँ पर सेम चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं करने दे रहे। क्यों? रिफ्यूटेबल पैटर्न इन लोकल बाइंडिंग, because we have already defined it, defined this variable name or as defined this variable name with const. So अब हम ये काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर देने का मकसद क्या है कि ओह मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलराइट ओके सॉरी, const के साथ is working। ठीक है, अगर अब यहाँ पर मैं इसको सेम काम यहाँ पे लेट के साथ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू तो इनिशियलाइज हो गई कि यहाँ पे शुरू में फॉल्स है, अब यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बाहर प्रिंट लगाता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज वर्किंग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन फंक्शन
और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनसाइड, इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्य। अब यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यू आती है इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमें इस वैल्यू, इस वर्किंग की वैल्यू ट्रू मिल रही है, हाउएवर हमारी मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू फॉल्स आ रही है। क्योंकि हमने यही है ना देखा कि रस्ट लाइन बाय लाइन यानी सिंक्रोनसली चल रहा है। यहाँ पे लाइन, यहाँ पे रैंडम कॉन्स्ट आया गया है, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ गए जिसमें हमने इस वर्किंग वैल्यू ट्रू कर दी। हाउएवर हमने जब प्रिंट एंड प्रिंट किया तो इस वर्किंग की वैल्यू तो यहाँ पे ओल्डर वन आ रही है, जब यानी पुरानी वाली आ रही है। सो इसका मसला ये है कि जब हम कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रस्ट का ये वाला ब्लॉक है ये बिल्कुल बाकी प्रोग्राम से आइसोलेटेड है। तो इसके अंदर जो भी काम करोगे वो आपका, उसका ताल्लुक आपके किसी भी पुरानी चीज़ों से नहीं होगा। लेट्स से अगर आपने कोई भी वैल्यू इस आइसोलेटेड ब्लॉक के अंदर डिफाइन की है यानी अपडेट की है, चेंजेस की हैं, सो ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, चेंजेस बाहर इसके अलावा रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। सो ये काइंड ऑफ अ ब्लॉक स्कोप हो गया कि आपके इसी चीज के अंदर, इसी आइसोलेटेड ब्लॉक के अंदर जो भी चेंजेस होगी इसी के अंदर आपको विजिबल होंगी। बाकी इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में रिव्यू कर रहे होंगे। इसके बाद डाटा टाइप्स जो कि हम अभी रिव्यू कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास इंटीजर्स या राइट हियर, so we have signed integers, unsigned integers, and we have different 128 bit and arc sign, yani it will automatically detect whether we want to have this number of bits into our program or for this variable specifically. Then we have number literals, hexa, octal, binary, and so on and so forth. So डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स हैं, आप ये सारी चीज़ें रिव्यू कर सकते हैं रस की बुक में, जो कि मैं ये सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो यू कैन go through all these types on your own as well. So float, you have uh, these are the functionalities that they are the mathematical operations that they are performing right here, the addition, subtraction, remainder, and so on and so forth. And we have boolean, we have character me will be defined inside single, we can say the apostrophe, you can say. So we will not be defining it in what we can say the, हम इसको डबल जो कॉमा होते हैं, डबल क्या कहते हैं इसको, जिस तरह की ये सिंबल है ये डिफाइन होते हैं स्ट्रिंग के लिए इस तरह के, और सिंगल लिटरल्स लेट्स अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट कैरेक्टर कैरेक्टर चेक 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ सी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर, सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया। अगर मैं कैरेक्टर को डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है कि इफ यू मेंट टू राइट अ कैरेक्टर लिटरल यूज सिंगल कोट्स, if I don't want to define it, if I want to change the type, we can do, let's say, for now I'm doing it uh, str. For now I'm doing, let's say, string, defining it as string, and the error will get removed. So yeah, now you can see the error is removed. But यहाँ पे इसको ये सेव करता हूँ, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। कैरेक्टर्स हो गया, टपल्स हो गया, जो कि हमने पाइथन में शायद हमने एक्सप्लोर नहीं किया, तो आने वाले दिनों में पाइथन की भी सीरीज आ जाएगी जिसमें हम टपल्स को डिफाइन करते हैं। डिक्शनरीज, पाइथन में डिक्शनरीज कहलाती है, एरे को डिक्शनरीज कहते हैं। इसमें एरेज हैं, ये आ गए आपकी एरे जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। इसके बाद ये एरे है, और फिर ये stdio फंक्शंस है, यानी आप यूजर से इनपुट किस तरह ले सकते हैं, यूज std आउट आउटपुट किस तरह होते हैं, और ये सारी चीजें। सो लेट्स से अभी हम पढ़ लेते हैं कि यूजर से इनपुट किस तरह लेने हैं। यूजर से हम इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड रस की लाइब्रेरी stdio, ठीक है। इनपुट स्टैंडर्ड एंड इनपुट आयो, आयो मीन्स इनपुट आउटपुट।
So input output will we will have you can say the function. For now we will not cover the advanced concept that कि भाई macros क्या होते हैं, traits क्या होते हैं. We will just focus on the basic generic names that we have already learned or reviewed in JavaScript and TypeScript. So we will be following right now, till now, the same generic names, and we will assign these names to them as well. आगे आने वाले दिनों में फिर हम पढ़ लेंगे कि इसके बाकायदा क्या-क्या नाम होते हैं, मैक्रोस क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. ठीक है. सो अगर हम आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ये सारे कोड को फॉर्मेट आउट कर देता हूँ. अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल्स टू, या भी मैं अनडिफाइंड रहने देता हूँ. ठीक है. मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि std आयो. ठीक है. ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे रिमूव इम्पोर्ट यूज std आयो, सॉरी std आयो. मैंने इम्पोर्ट किया. अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, std, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ मुझे इंटेलिजेंस मिल रही है कि क्या क्या मेरे पास इसके अलावा मैक्रोज हैं, कौन कौन से, सॉरी फंक्शंस, राइट नाउ वी विल कॉल फंक्शंस. सो कौन कौन से फंक्शंस हैं मेरे पास. यहाँ पे काफ़ी सारी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से फंक्शन है. सो हाउएवर वी वांट, व्हाट वी वांट, std, राइट नाउ वी वांट std in. ओह सॉरी, आई एम वाई std in. और यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसके अलावा एरर हैंडलिंग वाले कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं रस में. जैसे रीड लाइन एक मेथड है जिसमें हम रीड लाइन कर रहे होंगे, यानी यूजर से इनपुट ले रहे हो. लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ डॉट एक्सपेक्ट, और यहाँ पर मैंने कहा डॉट एक्सपेक्ट फेल टू रीड लाइन, ये क्या है, ये फॉल बैक है. दैट से अगर कोई यूजर इनपुट नहीं देता, प्रोग्राम क्लोज कर दे व्हाटसोएवर, so we will be expecting or we will show this error. So because already we have discussed that Rust is a type safe language, and हमें रस्ट को बाय डिफॉल्ट बताना पड़ता है, वरना रस्ट का कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करने देता. हमें कंपाइल टाइम पर ही एरर्स आ जाते हैं कि भाई ये प्रोग्राम चल ही नहीं सकता, कंपाइल ही नहीं हो सकता. मैं अगर यहाँ पे हूँ रीड लाइन, एंड मैं लेट से यूं कर देता हूँ मैं कि हम नेम एंड एक्सपेक्ट एरर, फॉर नाउ मैं एरर दे देता हूँ. ठीक है. अगर अभी सेव करता हूँ और यहाँ पे मुझे एरर आ गया टाइप का कि यूज नेम इनसाइड इजंट इनिशियलाइज्ड, नेम यूज हियर बट इट इजंट इनिशियलाइज्ड, क्योंकि नेम हमने डिफाइन तो कर दिया बट ये इनिशियलाइज नहीं है. तो क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग, यानी हम बता रहे हैं कि स्ट्रिंग ये वेरिएबल है, सॉरी मैंने इस इक्वल्स टू लिख दिया, स्ट्रिंग है. और न्यू का मतलब है यहाँ पे काफी सारे, अगर मैं आऊँ मैक्रोज, न्यू है, फ्रॉम यूटीएफ, स्प्लिट ऑफ, ये सारी चीजें मैं न्यू करता हूँ कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाए यहाँ पर. ठीक है. ओके. मैंने म्यूटेबल, ये वाले सारे कॉन्सेप्ट अभी ये मैं प्रोग्राम चलाने के लिए मैं आप गो थ्रू कर देता हूँ. म्यूट यानी क्या मतलब, हम बोरोइंग वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि ओनरशिप और ये सारी चीजें, ये हम बाद में कवर कर लेंगे. राइट नाउ आई एम just yeah, very yeah, as regards to. और अच्छा, एक और चीज जो कि मैंने बताना है, भूल गया हूँ शायद, कि कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइन करती है. इसका मतलब है यहाँ पर डायनेमिक कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और डायनेमिक वैल्यू किस तरह आएगी, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया. जैसे हम कंसोल में करते थे जावास्क्रिप्ट में कि हम कंसोल डॉट लॉग करते थे और उसमें हम कहते थे कि भाई नेम, फिर अलग से आगे नेम करते थे, और फिर यहाँ पे इस तरह नहीं, यहाँ यहाँ पे हमें जितने डायनेमिक वेरिएबल्स प्रिंट आउट करने हैं उतनी बार हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे इसमें. फिर वो डिफ डिस्प्ले एफएमटी और बाकी सारे मसले आते हैं, वो बाकी इन आने वाले दिनों में जब हम फॉलो कर रहे होंगे सीरीज में, तो जो जो मसले आते जाएंगे वो हम फिर उसको सीखते जाएंगे कि वो किस तरह रिजॉल्व हो सकते हैं. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे आके मैं
अब मुझे यहाँ पे प्रोग्राम रुक गया और मुझे यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने लिख दिया हादी। जैसे ही मैंने हादी हैदर लिखा और मेरे पास प्रिंट हो गया नेम इज इक्वल्स टू हादी हैदर। एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम डाल सकते हैं कि हम लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे जब एम्प्टी यानी प्रोग्राम रुक गया और मुझे ये नहीं पता था यूजर को कि भाई यहाँ पे करना क्या, प्रोग्राम रुका क्यों, तो हम यहाँ पे एक काम नहीं कर देते हैं कि हम एक प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट एलन एंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे print ln means in a new line, just right now we do print, क्या हो गया, ओके print cargo run, ओके right now enter your name, क्या लिख देता हूँ हादी हैदर, और यहाँ पे मेरे पास नेम इज इक्वल्स टू हादी हैदर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करते रहेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फंक्शंस। सो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते थे फंक्शंस का, कि हम एक फंक्शन बना लेते थे, फंक्शन लिखते थे जावास्क्रिप्ट में के लिए फंक्शन एबीसी, और फिर हम यू कर देते और हमारा लेट से इसमें हो जाता था कि भाई मैंने एक कॉन्सोल लिख दिया। लेकिन रस्ट में थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हमने कहा पढ़ा है कि टाइप से एक लैंग्वेज है, तो इसमें क्या हम करेंगे कि फंक्शन का कीवर्ड हो जाएगा एफ एन, में लेट से इवन नंबर निकाल लेते हैं कि भाई वेदर द नंबर इज इवन और नॉट, सो लेट्स से इवन लिख देता हूँ कि इज इवन है या नहीं, ठीक है। मैंने इसी तरह कर ली, ब्रैकेट डाल दिए, और इसके बाद मुझे रस्ट में पास करनी पड़ती है टाइप, रिटर्न टाइप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बूलियन। मैं सेव करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा कि मैंने रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं की, ठीक है, सॉरी भूल, सेव कर लिया, और यहाँ पे एरर आ गया कि रस्ट ने एरर दे दी कि मिसमैच टाइप इम्प्लिसिट रिटर्न्स एम्प्टी है, यानी हमें कोई रिटर्न नहीं हो रही बॉडी में। मैं यहाँ पे जस्ट फॉर नाउ मैं एक काम ये करता हूँ, मैं लिखता हूँ रिटर्न फॉल्स, ठीक है। जैसे मैंने रिटर्न फॉल्स किया एरर तो चला गया। एक और तरीका है रिटर्न करने का रस्ट में, मैं यहाँ पे यूँ कर देता हूँ फॉल्स। मैं जब मैं रिटर्न कीवर्ड के बगैर मैं रिटर्न करना चाहता हूँ तो मैं एंड में सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, मैं जस्ट रिटर्न टाइप यानी जो भी रिटर्न वैल्यू है मैं वो लिख दूंगा और वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। सो राइट नाउ हम चेक करना चाहते हैं कि जो नंबर है वो इवन नंबर है या नहीं, तो हम पहले यूजर से इनपुट में यानी एज आर्ग्यूमेंट कुछ ना कुछ नंबर ले लेते हैं। लेट्स से हम ले लेते हैं नम, हम कह लेते हैं कि ये i32 है, यानी इंटीजर 32 बिट है, ठीक है, साइंड इंटीजर 32 बिट। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि लेट्स से इफ नम मॉड्यूलो लेट्स से 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर डिविजिबल बाय 2 है, यानी रिमाइंडर में 0 आ रहा है, जो भी नंबर आर्गुमेंट में पास हुआ है उसको अगर हम मॉड्यूलो 2 करें और रिमाइंडर में 0 बचता है, तो हम कह देते हैं रिटर्न कर देते हैं यह ट्रू, वरना एल्स हम यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। सेव हो गया, ओके। तो यहाँ पर रिटर्न रिटर्न टाइप एंड सो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को चलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से ये सब को कमेंट आउट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट्स से मैं डायरेक्ट प्रिंट लेट्स से प्रिंट प्रिंट एलन एलन न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा। इसके बाद मैं लिख देता हूँ कि लेट्स से नंबर इज इवन, नंबर लेट्स से मैं लिख देता हूँ 32 इज इवन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इवन 32, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक प्रिंट कर दिया और मैंने 32 आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया और मेरे पास नंबर 32 इज इवन ट्रू।
लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 32 कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने 33 कर दिया और मैं कार को रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फॉल्स आ गया कि भाई आपकी जो आपने नंबर पास किया है वो इवन नंबर नहीं है। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में जिस तरह हमने पढ़ा कि किस तरह फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, इसी तरह ये फंक्शन हो गए। हमने यहाँ पे क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन आपको बनाना है या कोई भी जितना भी आपका प्रोग्राम है वो चलेगा मेन फंक्शन से। सो आप जो जितनी भी चीज़ें आप डिफाइन करेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। जितने आप फंक्शंस बनाएंगे, मैक्रोस बनाएंगे, डिफरेंट फाइल के अंदर से आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं जावास्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज अभी फॉर नाउ बोल देता हूँ कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं और इस फाइल में मेन में यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मेन में आके रन होंगी। जिस तरह हम रिएक्ट में देखते हैं कि index.ts या index.js की फाइल होती है जिसमें हम फिर वो रेंडर कंपोनेंट वाला फंक्शन चलाते हैं और फिर उस तरह करके हम रिटर्न करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये बेसिक सा फंक्शन बनाया है जिसमें हम देख रहे हैं कि पैरेंथेसिस ये बेसिक सी वैल्यूज हैं कि लेट y इक्वल्स टू, उन्होंने वैल्यू डिफाइन कर दी है एक्सप्रेशन के अंदर। एक फंक्शन बनाया 5 जो कि रिटर्न कर रहा है 5। Yeah. So they have created a function plus one which will increment a number, the argument by one. So yeah, let's move on to the comments. Comments is the easiest thing in any programming language that we will be defining using comments. We will have to define the comments in our program. So let's say if a user wants to understand what the developer has written, or let's say अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है और मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेड हो प्रॉपर, कि कोई दूसरा अगर डेवलपर आना चाहे और वो रिव्यू करता है, वो पढ़ता है, तो उसके लिए इजी हो जाएगा ये सारा कि भाई ये कोड क्यों लिखा गया है, इसका पर्पस क्या है और उसकी बाकी सारी चीज़ें। सो वी हैव ऑलरेडी कमेंटेड आउट आवर फंक्शन, सो वी नो कि डबल स्लैश लगा देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा फंक्शन। इसके बाद ये लास्ट स्टेप है फॉर नाउ कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इफ एल्स वाला आपका जो ब्लॉक होता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इसे हम कंट्रोल फ्लो कहते हैं। लेट्स से इफ नंबर, जिस तरह हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी, इफ modulo the argument the num, if it is modulus or modulo by 2 is equals to 0, if the remainder is 0, then we will return true or else false. We have a choice. Let's say if I will define this inside else block, I can do this by return. Let's say मैं return कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ return false. I can do this either way. I can directly pass this directly into the main in the function. ठीक है, मैं कंट्रोल फ्लो से हट के अगर लेट्स से मुझे चाहता हूँ कि लेट्स एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि फंक्शन लेट्स से इस, या मैं एक काम करता हूँ कि भाई मैं कहता हूँ इस इस कॉन्सोनेंट में पे ले लेता हूँ कि अल्फा या अल्फाबेट कहेंगे, क्या कहेंगे, या वोवेल या कॉन्सोनेंट, बात एक ही है। मैं यहाँ पे कैरेक्टर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ कि ट्रू या फॉल्स। मैं यहाँ पे आता हूँ कि इफ अल्फा बैट इज इक्वल टू ए, फिर इसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं या शॉर्ट सर्किटिंग वाले, शॉर्ट सर्किटिंग जिसे कहते हैं, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स, कि जिसमें हम और या लॉजिकल और एंड, लेट्स मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अल्फाबेट इज इक्वल्स टू बी, सॉरी मैंने ट्रिपल इक्वल लगा दिया जावास्क्रिप्ट फॉर्म। और अगर मैं एंड भी कर सकता हूँ यूज। एंड का मतलब है कि दोनों साइड ट्रू होनी चाहिए, दोनों साइड ट्रू होगी। और अगर मैं लॉजिकल या बार लगा देता हूँ और लगाता हूँ, तो इसका मतलब इधर वे, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू और राइट हैंड साइड इज ट्रू, if any of the conditions is true, we will
run this block, else we will go on to the fallback, let's say else if or inside the else. ठीक है, मैं यहाँ से एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको सेपरेट आउट कर लेता हूँ फॉर नाउ समझाने के लिए। वैसे ये अच्छी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे लेट से मैं यहाँ कर देता हूँ रिटर्न टू। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एल्स इफ, और मैं अल्फाबेट लिख देता हूँ बी, रिटर्न टू। और एल्स में मैं जस्ट अभी फॉर नॉट जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्ट। ठीक है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप टू के पास ये भूल मांगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एन इज यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से ये। मैं कार्बन टू, अगर मैं यहाँ पे बी पास टी पास कर देता हूँ, सो या इज वॉवेल फॉल्स, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर सेव करता हूँ तो मुझे एरर आ गया कि इफ यू मेंट टू राइट अ करेक्टर मींस, because it's a type safe programming language, so I cannot pass a string wherever I have because I'm accepting only characters in the arguments, so I cannot pass strings as an argument in that specific function. I have to pass character specifically into this function. So let's go on the documentation again. Back to documentation, conditions, block, else if, else, and yeah, it's perfectly fine. We can go for counters and so on and so forth कि हम counters किस तरह बना सकते हैं, कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ये सारी चीज़ें जो कि हम रस में पढ़ चुके हैं। So ये क्या है, if any one of you wants to learn about basic operations, let's say increment, post increment, pre-increment, short circuiting, and these kind of basic concepts of programming, so you can follow our previous videos in which we have explained in depth about all these basic programming principles. So that's all for now, and I hope you have learned a lot from this lecture or this video, and we will is- continue with the remaining lectures or the remaining chapters. We have the advanced concepts too, and after that we will also, in the next video we will also cover our conditionals and loops. We will cover structs, enums. We have error handling, the option result, pattern matching, package management. We have advanced concepts like memory management, mutability, heap, stack, ownership, borrowing references, and traits. And there are a lot of stuff that we can uh, learn from the Rust programming language documentation. So let's see how it goes. And if you have any questions, or if you want any of the improvements within my video, within my lectures, and so on and so forth. So we can discuss about it in comments. So just let me know कि किस तरह की जर्नी जा रही है, और मैं ये सारा कोड पुश कर दूंगा GitHub पे, so you can get the link from the description. So see you all in our next video. Bye.